This is Sonia Khanna and you are watching Learn with Motivation. In this video, we will discuss about Windows 7. Windows is an operating system that acts as an interface between the user and the computer. It has been developed by Microsoft and was introduced on November 20, 1985. Windows uses a graphical user interface. सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ग्राफिकल क्या होता है, GUI क्या होता है। GUI मीन्स कि आपके पास ऐसा विंडो आ गया जिसमें कि आइकन्स हैं और आप माउस का यूज़ करके उन आइकन्स पे क्लिक करते हैं और फिर वर्क करते हैं, ठीक है। देयर आर मैनी वर्जन्स ऑफ विंडो। द फर्स्ट वर्जन ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम वॉज Windows 95. Since the many new and advanced versions of Windows have been developed, such as Windows 98, Windows 2000, Windows ME, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 is the latest versions of Windows released on 29 जुलाई 2015। अभी देखो काफ़ी और वर्जन भी आ गए हैं। अब ये जो वर्जन होते हैं, क्या मतलब होता है इन वर्जन्स का? वर्जन्स का मतलब होता है कि कुछ नया। आप देख रहे हो कहीं आपने बच्चों ने तो यही एक्सपीरियंस किया ना कि गेम्स नई आ गई हैं, गेम्स के अलावा उसको यूज़ करने का तरीका नया आ गया है, कई ऑप्शंस नए आ गए हैं, ईजी हो गया है। पुराने अगर हम पीपीटी में जाएं तो उसमें सिर्फ आप पीपीटी बना सकते थे, लेकिन अगर हम न्यू वर्जन की पीपीटी पावर पॉइंट पे जाएं तो आप क्या कर सकते हो, उसमें आप वीडियो भी उसको कन्वर्ट कर सकते हो, पीडीएफ कन्वर्ट कर सकते हो। तो बड़े ही बेनिफिट है, नए नए ऑप्शन को ऐड किया जाता है तो उसे हम वर्जन कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ विंडोज 7। Microsoft developed Windows 7 as operating system whose interface was similar to that of Vista but met the enthusiasm for its noticeable speed improvement। इसकी जो स्पीड है ना वो इंक्रीज होती जा रही है। Modern system requirements, some of the its significant features are given below. First is विंडो इज ईजी टू यूज एंड मल्टीटास्किंग। मतलब कि अब आप कई तरह के काम एक साथ कर सकते हो। विंडोज 7 हैज़ अ वेरी अट्रैक्टिव लुक विथ कलरफुल थीम एंड स्लाइड शो। अब अट्रैक्टिव लुक होगा तो आपको काम करने में भी मज़ा आएगा। इट इज़ वेरी ईजी to use Windows 7. The use of window graphic make it quite interactive. It works the way you want and make new things possible. You can perform more than one task at a time. For example, you can type letter in MS Word and you can enjoy music in Windows Media Player. And second point is searching made easier. That means using Windows 7 you can quickly search more things in more places in your computer. And the next point is pinning on taskbar. Taskbar में ना पिन कर सकते हो। The taskbar of the Windows 7 is more flexible, application oriented. You can pin your favorite ऑन द टास्क बार फॉर ईजी एक्सेस। जैसे आप बोर्ड में एक पेपर पिन करके रख देते हो ताकि आपको ढूंढना ना पड़े। सेम लाइक दैट आपका कोई फेवरेट सॉफ्टवेयर है या फेवरेट फाइल है तो आप उसको टास्क बार में पिन करके रख दो, ठीक है। तो आप उसको जब चाहो तब इजीली ओपन करो और एक्सेस करो। अब वन बाय वन मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से, ठीक है। दिस इज जब आप कंप्यूटर ओपन करते हो तो जो आपको विंडो दिख रही है दैट इज टास्क डेस्कटॉप।
When you switch on computer, Windows start automatically and display a welcome message. It is followed by the first screen of window known as desktop. It contains some graphical symbols called icons. ये सारे जो छोटे छोटे symbols आपको दिख रहे हैं ये icons हैं. The bottommost bar of the window is called task bar. सबसे नीचे जो बार दिख रही है ना इसको हम कहते हैं टास्क बार. अब ये जो विंडो को हम डेस्कटॉप कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? द वर्ड डेस्कटॉप इज ड्राइव फ्रॉम द रियल लाइफ डेस्कटॉप, टॉप ऑफ द वर्किंग टेबल. आपकी टेबल के ऊपर जो पड़ा है वो आपका डेस्क के ऊपर पड़ा है, तो दैट इज कॉल्ड डेस्कटॉप. वेयर यू कैन may find pen stand, notepad, calculator, file, etc. The desktop or window also serve the same purpose. You can find various icons like objects, shortcuts, document icon, disk drive, everything on your desktop. अब ये देख रहे हो स्टार्ट बटन, टास्क बार पे स्टार्ट बटन है. The start button is probably the most frequently used component of the window desktop. When you click on the start button, a menu displaying the major application appear. These headings provide access to main program of your computer. You can start program, open document, customize your system, get help and search for item on your computer through the start button. ठीक है. अब ये जो आपको दिख रहे हैं, मैंने आपको बताया था छोटे छोटे स्मॉल पिक्चर, दीज आर कॉल्ड आइकन्स. ये आपको जो साइड में दिख रही है टास्क बार पे राइट साइड पे, दीज आर कॉल्ड सिस्टम ट्रे. क्विक एक्सेस कर सकते हैं. ये जो आपको घड़ी बनी हुई, कैलेंडर बना हुआ दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड गैजेट. ये आपकी मर्जी, आप अपीयर कर सकते हो, इसको रिमूव भी कर सकते हो. एंड जो आपके टास्क बार में राइट साइड में है दैट इज डेट एंड टाइम. आपके सिस्टम का डेट एंड टाइम है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग सेट भी कर सकते हो. अब हम स्टार्ट बटन पे आएंगे. स्टार्ट बटन पे जो क्लिक करके जो ओपन होता है ना, दैट इज कॉल्ड स्टार्ट मेन्यू. ठीक है. अब स्टार्ट मेन्यू के बारे में समझेंगे कि बेसिकली स्टार्ट मेन्यू क्या होता है और इसके अंदर के जो प्रोग्राम है वो क्या है. ठीक है. जैसे सबसे पहला है डॉक्यूमेंट. ओपन द डॉक्यूमेंट फोल्डर वेयर यू कैन स्टोर लेटर, रिपोर्ट, नोट्स एक्सेट्रा. जब भी आप सेव करते हो बाय डिफॉल्ट दैट सेव्ड इन डॉक्यूमेंट. नेक्स्ट इज पिक्चर. ओपन द पिक्चर folder where you store digital photos, image, graphics, file. सारे पिक्चर्स आपको सिस्टम की पिक्चर फोल्डर में मिल जाएंगे. नेक्स्ट इज म्यूजिक. ओपन द म्यूजिक फोल्डर where you can store music and other audio files. If you want to search the games, you can open the game folder. Central repository फॉर द गेम ऑन योर कंप्यूटर. जितनी भी नई गेम अगर आई है तो विंडो के अकॉर्डिंग वो गेम आपको दिखाई दे जाएगी. ठीक है. बाकी जो आप इंस्टॉल करते हो वो अलग रहेगी, ये विंडो गेम है. एंड नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर. गिव एक्सेस टू द डिस्क ड्राइव, कैमरा, स्कैनर एंड अदर हार्डवेयर डिवाइसेस कनेक्टेड टू योर कंप्यूटर. नेक्स्ट आप देख रहे हो क्या है, कंट्रोल पैनल. कंट्रोल पैनल प्रोवाइड ऑप्शन to customize the appearance, configure the functionality and remove the programs, set up network connection and user account. आपके सिस्टम की जितनी भी सेटिंग है वो सारी सेटिंग आप कंट्रोल पैनल से कंट्रोल कर सकते हो. डिवाइस एंड प्रिंटर. कोई भी नया डिवाइस डालना है या प्रिंटर का ड्राइव डालना है तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, डिवाइस एंड प्रिंटर में. फोल्डर डिस्प्ले device connected externally to your computer, including devices connected wirelessly or over the network. This folder allow you to perform many tasks which vary depending on the device. ठीक है. लास्ट में आपको दिख रहा है हेल्प एंड सपोर्ट. हेल्प एंड सपोर्ट क्या करता है? दिस मेन्यू प्रोवाइड ट्यूटोरियल, troubleshooting content, various support service
and help on any required topic by entering a keyword. अब वो वर्ड टाइप करो इसके अंदर और आपको उससे रिलेटेड जितना भी ट्यूटोरियल है वो आपको शो कर देगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं जो हमारा डेस्कटॉप है ना, उसमें कुछ बाय डिफ़ॉल्ट आइकन्स होते हैं, तो उनके यूज़ के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। कंप्यूटर मैंने ऑलरेडी बता दिया है, स्टार्ट मेन्यू में भी था कि कंप्यूटर में क्या होता है कि आपके सारे जो डिस्क ड्राइव है, कैमरा है, स्कैनर है, उसके डिवाइसेस की कनेक्टिविटी उसके अंदर है। आप कंप्यूटर ऑन करो और वो आप डायरेक्टली उस पर एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट है रिसाइकल बिन। व्हेन यू इट वर्क लाइक अ ट्रैश बिन, डस्ट बिन, ठीक है, इन विच यू कैन थ्रो द वेस्ट पेपर। It is a folder that hold the deleted object. You can always retrieve the deleted files until you have emptied the recycle bin. जब तक recycle bin को empty नहीं करते हो तब तक आप वो जो आप delete फाइल की है ना उसको रिस्टोर कर सकते हो, बट once you empty your recycle bin you never get back it, okay। नेक्स्ट जो आपको देख रहा है ई, इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो ईजी टू एक्सेस द इंटरनेट, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ रहा है फाइल। अगर कुछ फाइल आपने अपने डेस्कटॉप पे सेव किया हुआ है तो इस तरह से आइकन बनेगा। येलो कलर का जो दिख रहा है ना दैट इज फोल्डर, तो जहाँ पर आप अपनी फाइलें सेव कर सकते हो। और ये आपको दिख रहा है एक शॉर्टकट आइकन, एक छोटा सा एरो दिख रहा है नीचे, तो ये शॉर्टकट है, एक्चुअल फाइल नहीं। एक्चुअल फाइल कहीं और होगा, इसको अगर कोई डिलीट करता है तो आपकी एक्चुअल फाइल डिलीट नहीं होगी। तो इस तरह के कुछ शॉर्टकट हम डेस्कटॉप पे बना लेते हैं ताकि ईजिली वहाँ पे एक्सेस कर सके, ठीक है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ये देखो द बॉटम मोस्ट बार इज अ टास्क बार। इसको हम टास्क बार कहते हैं। टास्क बार इज द लॉन्गेस्ट हॉरिजॉन्टल बार एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप। इट हैज द स्टार्ट बटन। इसमें सबसे पहला बटन क्या है? स्टार्ट बटन, ठीक है। द मिडल सेक्शन, ये जो बीच में सेक्शन दिख रहा है ना, यहाँ पर आप जब भी कोई काम करते हो ना तो उसके आइकन बन जाते हैं। इवन अब तो आप क्योंकि नई विंडो है आप इसमें पिनिंग कर सकते हो, जो भी आपको सॉफ्टवेयर फेवरेट सॉफ्टवेयर है तो वो आप पिनिंग भी कर सकते हो। द मिडल सेक्शन ऑफ द बार शोज द बटन with a label for each opened application and allow us to quickly switch between them. You can active the application window by clicking on its button. When an application is active, its button is highlighted in a lighter shade. थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि वो एक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो कि यहाँ पर है सिस्टम ट्रे। जितने भी क्विक एक्सेस आपने अगर बटन ऑन किए हुए हैं तो दैट इज सिस्टम ट्रे। नेक्स्ट आप देख रहे हो दैट इज डेट एंड टाइम, तो आपके सिस्टम का जो भी डेट एंड टाइम है वो यहाँ आपको शो करेगा। अब नेक्स्ट हम टॉपिक पे आते हैं। ये जो आपकी नॉर्मल विंडो है, ठीक है, इस विंडो में आप टॉप पे देख रहे हो सबसे ऊपर, इसे बोलते हैं टाइटल बार। It is the horizontal bar, the top of the window, displaying the name of current document and application. On the right side of the title bar के बिल्कुल राइट साइड पे आ जाओ, यहाँ 3 बटन दिख रहे हैं आपको। The first button is minimize button. This button with a small horizontal line is called minimize button. If you click on minimize button, it will reduce the window to the button on the taskbar. taskbar मैंने आपको दिखाया था छोटे छोटे बटन, तो आप मिनिमाइज कर सकते हो। जैसे आपकी बुक ओपन है, आप उसको उल्टा करके क्या करते हो, टेबल पे रख देते हो, सेम लाइक दैट। द नेम ऑफ एप्लीकेशन विल बी डिस्प्ले inside the button to bring the window back to its original size. Click on the same button on the taskbar. नेक्स्ट बटन देखो, नेक्स्ट दिख रहा है, इसको बोलते हैं रीस्टोर बटन। डबल फाइल दिख रही है ना, रीस्टोर बटन। व्हेन यू मैक्सिमाइज
अ विंडो। आप जब मैक्सिमाइज करते हो तब ये दिखता है आपको कि ये आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप रिप्लेस कर सकते हो, रीस्टोर में आ सकते हो। दिस बटन with two square is located on the right side of the title bar। मैक्सिमाइज बटन को क्लिक करोगे तो रिस्टोर आ जाएगा, रिस्टोर को क्लिक करोगे तो मैक्सिमाइज आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बटन देखो मैक्सिमाइज। अब रिस्टोर को बटन को क्लिक किया तो मैक्सिमाइज बटन आ गया। इस बटन को क्लिक करने से ना आपकी जो भी आपने ओपन किया है विंडो उसका साइज फुल साइज हो जाएगा। एनलार्ज the window to its maximum possible size। And the last button is close button। The button with the cross symbol is called close button। Clicking on the button will close the application। अब देखो टाइटल बार के बिल्कुल नीचे जो आप आ रहा है इसको हम बोलते हैं मेन्यू बार। इट कंटेन ऑल द मेन्यू कमांड्स of a particular application। Click on the menu command display the drop down list। इस पर क्लिक करते हैं तो इसकी ड्रॉप डाउन लिस्ट आती है। ठीक है, और आप उस पर क्लिक करके नीचे देखिए ऑप्शंस बार भी आ रहा है, आप उस पर क्लिक करके ऑप्शन पे वर्क कर सकते हो। ठीक है, सबसे नीचे आ जाओ, किसी भी विंडो के सबसे नीचे जो आ रहा है दैट इज स्टेटस बार। हाँ, टास्क बार के ऊपर, टास्क बार नहीं, टास्क बार के जो ऊपर आ रहा है उसको हम स्टेटस बार बोलते हैं। ठीक है, देयर आर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल। अब नेक्स्ट पे आते हैं। अब जैसे अगर आपने कोई भी इंटरनेट एक्सप्लोरर खोला है या आपने अपना विंडो एक्सप्लोरर खोला है तो उसमें सबसे टॉप पे आप देखो मेन्यू बार की जगह ना वहाँ आ रहा है एड्रेस बार, जो कि आपको पाथ बताता है, इंटरनेट का पाथ बताता है, आपकी फाइल का पाथ बताता है। तो दैट इज एड्रेस बार। It is a horizontal bar located at the top of the window। The address bar shows the path of the current window। It replaces the traditional title bar at the top of the window। ये जो पूरा आ रहा है ना that is called frame। It is usually located at the above of the content of the window and it has both menu bar and toolbar too। अब आप देखो स्क्रॉल बार आया। ठीक है, देयर आर टू स्क्रॉल बार, वर्टिकल स्क्रॉल बार एंड हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। जो वर्टिकल है ये जैसे आपके राइट साइड में आ रहा है। ठीक है, यूजिंग द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार यू कैन मूव अप एंड, हॉरिजॉन्टल से क्या हो रहा है आप लेफ्ट राइट में मूव कर पा रहे हो और वर्टिकल से आप अप एंड डाउन मूव कर पाते हो। ठीक है, hope you understand all the topic very clearly and don't forget to like and subscribe my channel। Thank you।